अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टकाटक के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हमारी औरत है उसकी कितनी इज्जत है। वो मां के रूप में भी है, वो बेटी के रूप में भी है, वो बहन के रूप में भी है। और आप यकीन करें कि पूरी दुनिया के अंदर औरत को वो मुकाम कहीं पे भी नहीं है जो पाकिस्तान में है। क्योंकि जो बाहर की औरत है, यूरोप की औरत है, अमेरिका की औरत है, वो मर्द के साथ काम कर रही है शाना बशाना। लेकिन हमारे यहां औरत को एक खास मुकाम दिया हुआ है, और ये सिर्फ इसलिए मिला हुआ है कि हम मुसलमान हैं। लेकिन आज यहां पे कुछ मसले अजीब से लग रहे हैं मुझे। हाँ जी, अरे हकीम साहब जी भाईजान, क्या कर रहे हैं? कौन सी आज भाईजान दवाई कुट रहा होर तानू कुट्टा भाईजान। अब जाके किते शरीका कुट ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਾਲੀ ਹਕੀਮ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਲੀ। ਕੱਲ ਅਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਗਈ ਸਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈਜਾਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈਜਾਨ? ਉਹ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਾਹ ਦੀ ਗਰੇਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਗੋਲਕੰਦ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ, ਹਾਂ ਕੱਲ 2 ਦਫਨਾਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਕਵਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੇ 15,000 ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ। 30,000 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 15,000 ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ 5,000 ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਲੈ ਲੈ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ 15 ਨਾ 10 ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਰਗਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤੱਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। आप की है ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ, मैं तो आपसे यही पूछने लगा हूं कि आप अपनी सीट छोड़ के तो उधर क्यों बैठे हुए हैं? भाईजान हाँ। असली मालकान आ गए भाईजान। है? हाँ जी भाईजान। हकीम साहब आ गए? जी आ गए भाईजान। अच्छा, हाँ जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? भाईजान असी रईसां दे पुत्तर हां, तानू की पता होवे। 3 कोठियां मेरियां बैरिया चन भाईजान। अच्छा। 2 बैरिया ऑर्चर्ड चन भाईजान। 3 लेक सिटी चन भाईजान। तुसी समझ नहीं सकते, मेरा ते अपना डिपार्टमेंटल स्टोर है बहुत बड़ा भाईजान। ਬੱਲੇ ਬਈ ਬੱਲੇ। जी मैं की समझना भाईजान, गरीबां दा काम रिपेयर पे 2 रुपए 200 ज्यादा तो ज्यादा भाईजान की है 200 रुपया कमा लोगे, और की कर लोगे भाईजान। भाईजान असी तो लखां च खेडने आ ते ओ भाईजान। नसीर टिड्डे मेरी जगह ते बैठ जाएगा। नहीं भाईजान, मैनू माफ कर दियो। बाहर इनियां लैना लगियां आईयां लोकां दियां। एक औरत कह रही सी केड़ा हकीम बाया, मैं उन्होंने कहा सी मैंने कोई ऐसी दवाई दे मेरा बच्चा सेहतमंद पैदा होवे। उन्होंने कहता सरदाई पिया कर, वो बच्चा ते कमजोर पैदा हो गया और औरत भगवान जी बन गई है। असल हकीम साहब आ गए भाईजान। जी भाईजान। ओए टिड्डे नजीर बाज आएगा बाज। एक औरत ने क्या कहा, मैंने को ऐसी दवाई दे मैं छोटी छोटी नजर आऊं। ऐसी दवाई देती बेचारी हड्डी को ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਡਾਉਣੇ ਤੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਉਹ ਖੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਗੋਦ ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਾਈਜਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਟਿੱਡੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਕਾਮਯਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਪਟੋਸੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ
ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਹਾਏ ਨਜ਼ੀਰ ਕਿੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈ ਭਾਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਡਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਜ਼ੀਰ ਡੋਗਰ ਤਾਰੜਾ ਟਿੱਡਾ ਭਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਭਾਈਆਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਰਿਛਨੀ ਦਾ ਮੁਕਲਾਵਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਦੋਸਤ। ਇਹ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਗੂੜੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈਆਂ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈਆਂ, ਗੋਰਕਾਂ ਦੀ ਕਪੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੀ। ਜੀ ਭਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਿਖਾ ਆ, ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ। चुप कर जा नजीर टिड्डे, चुप कर जा। मैं तो पहले गौर करना को बड़ा डरता है। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਕਵਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आवाज बंद कर ले। ए मेरी थाह ते आ गया ना भाईया, इन्नी कबर पक्की बनाना, इन्नी पक्की बनाना कि क़यामत वाले दिन सारी दुनिया उठे, ए ना उठे। और एदी कबर जेड़ी टिड्डा जाते हैगा, ਕਿਸੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੁੰਨ ਦੇਣਾ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟਿਲ ਰੱਖੀ ਏ ਕਿ ਟਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਾਂ? ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣਾ ਸਾ ਭਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖਰਚ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਊ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, सबसे पहले हकीम साहब, नान हकीम तू भूल गया सी। नान हकीम साहब, सबसे पहले खुशामदीद, आप वापस आए हैं, इतना बड़ा ट्रैवल करके आए हैं। मैं जहाज तो उतरे पूरा शहर लेने आया सी। हाँ, इन्ने फुल सुट्टे फुल ही नजर आने बिचों नजर ही ना उस्ताद भाईजान, इन्ने फुल के सुट्टे तब ऊंचा मेरी गल सुन बाऊ, हाँ। मेरी थां ते ए बैठ गया, चंद दी थां ते तेरी थां ते कोई नहीं लबा। नहीं, मैं जाता ही नहीं, मैं तो इधर बैठा हूँ। भाईजान देखो, जाऊंगा और तेबूर वाले नु तू ही लबा, पुराने अफजाल चिट्टे। भाईजान उस्ताद भाईजान देखो मेरी गल सुनो, उस ज़हीन बंदे दी सीट है भाईजान, उत्थे कोई बेवकूफ बंदा ही चाहिए। नजीर टिड्डे जी भाईजान, ये ज़हीन हैगा? लोकी कहंदे भाईजान ते ये मन्नी फिरदा है। ये सच्ची मिलता ज़हीन हैगा ना, बस फिर गौर कर इनू ले आई लिया। जी भाईजान, अगर ये गया ना तो उस सीट ते तानू बिठा देना भाईजान, ते तुहाडी सीट ते मैं बैठा ही हां। लोग तेरी जान नू रो रहे ने, बाहर लैना लगियां कि तेनू बिठा के चले गए सी। एक बंदा आया कोल कहंदा बाहर खड़ो, कहंदा जी मैं अखां ठीक कराणियां, मेरी एक अख ही कानी हो गई। मैं लड़न गया ते कहंदा हुण तू सब नू एक अख नाल देखिया कर। अच्छा भाईजान बैठो तुसी, बैठो। बिठाई आंदे ही गुस्सा खड़े हो जाए, इस तरह करी जाए, फिर इस तरह करी जाए, फिर इस तरह करी जाए, फिर बिठाई जाए। जी भाईजान, चलो तुम समझो सी कर लिया, तुम बैठो। कल टिड्डे मैं तेना नाराज हो जाऊंगा, उस तरह कर फिर उस्ताद भाईजान दसो, इस तरह कर, इस तरह कर, इस तरह कर ली, फिर इस तरह कर, फिर इस तरह कर लो, फिर इस तरह कर, फिर इस तरह कर लो। इस तरह करता करता निकल जा। उस्ताद भाईजान बैठो तो सही, अमेरिका तो आयो, तुहाडे कोल अमेरिका दीयां गल्लां पुछणियां। मैं तो कहना दोवें उस्ताद शिगिर्द है, छड्डो ते ऐहो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, पुतली तमाशा करया करो, ऐसे करो। तू ना कर ते सोना लग रहा सी, तू ते इंज लगदा मझ ने सप खा लिया। भाईजान ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੋ ਭਾਈਜਾਨ। ਨਜ਼ੀਰ ਟਿੱਡੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈਜਾਨ। हाँ यार मेरी उससे लड़ाई हो गई। अच्छा, वो जनाब वो अंग्रेजी बोलने लगता है। मैं क्या यार बड़े पढ़े लिखे गए तुसी। अजय भाई वो ना और तेज अंग्रेजी बोली, हुई अखीर उन्होंने पुलिस बुला ली। वो क्यों? उन्हें फिर दसे कि तेनू गाना कट रहा।
ਉਸਤਾਦ ਭਾਈਜਾਨ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਵਾਂ। ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾगिर्द ना बददुआओं दे लायक जे और पाओ जी मेरे पीछे की वाकयात होए की तसादुम होए की हंगामे जरा मैंने 10 जरा नहीं, अब यहाँ पुरानी यहाँ की बातें छोड़े, अमेरिका की बातें बताएं। हाँ जी भाईजान सुनो कौन कौन से खास नुस्खे आप लेके आए, क्या किया वहां पे? मैं उत्थे नियाग्रा फॉल दी जेडी सी ना फॉल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ अच्छा। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा जी ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ बन्नाटा फोर्स केड़ा मुंशी मैं उसे चला गया अच्छा उठो एक जड़ी बूटी लेके आंदी है हाँ पत्थर लेके आंदा पी के तेनू खवावांगा 2 मिनट नहीं कटे भाईजान एक गल देखो मैं अपने उस्ताद भाईजान दी पता क्यों इज्जत करना हाँ। अल्लाह दी रहमत ना झूठ इन्हां ने छड्डिया ही नहीं भाईजान हाँ जी भाईजान नियाग्रा फॉल कैनेडा च अमेरिका च लै गए उन्होंने भाईजान ਨਾਨ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ तेनू बर्छी वजनी किसी दिन भाईजान ये सारी गल नू खराब करन नहीं रखिया भाईजान ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਐਸੀ अच्छा मैनू बाऊ नाल गल्लां करन दे बाऊ ये सारे उस तरह के उस तरह ही ने हाँ जी भाईजान हैं आपने ले लिया इनसे, हिसाब किताब ले लिया इनसे? मैं याद कराता तो बहुत तेरी बड़ी मेहरबानी हाँ। मैं तेन ऐसा नुस्खा दे रहा है कि बस तू की याद करेगा तेरा प्रोग्राम भी छत न लग जाएगा टकाटक। हाँ जी भाईजान मेरे पीछे की भी मजा आ जाएगा भाई। भाई साहब दे कादा भाईजान मैनू लगा तू करोड़ों रुपए कमाए ने मेरे पिछों भाईजान जिस तरह की दुकान तुसी मैं साहब लिया तू 10 करोड़ रुपए कमाया ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਚ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਭਾਈਜਾਨ झूठ बोल रहा है कल मेरे सामने एक मियां बीवी आए ने उन्हां कोल इन्हें 13000 रुपया लिया ते 2-4 कुड़ियां दित्तियां सिर्फ पुछो 13000 कित्थे हैगा कुड़ियां जो हो गई चलो 2-3 रुपए दियां जी भाईजान बाकी का 13000 ਕਿਹੜਾ ਭਾਈਜਾਨ और 13000 कट दे जेड़े बाकी कमाए नहीं 1 करोड़ तू कमाया तो 13000 ने दसता 1 करोड़ 13000 मैनू दे दे वरना मेरा दा दुश्मन कोई नहीं ਭਾਈਜਾਨ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਉਤਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ आ जेड़े 13000 दस रहा है 13000 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ हां ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ 1000 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 13000 बाबू गल सीरियस होंदी जा रही है हाँ। अब मैनू तेन पता मैनू गुस्सा चढ़ जा फिर लैंदा नहीं हुंदा नहीं नहीं भाईजान बिल्कुल, ਮੈਨੂੰ बिल्कुल पता है। हिसाब किताब लेना चाहिए, इसने बड़े पैसे कमाए हैं आपके पीछे। उस्ताद जी ए भी झूठ बोल रहा है नहीं भाईजान देखो वो भी झूठ बोल रहा है भाईजान ने मैं साफ दे देना ਉਹਨੇ ਟਾਈ ਲਾਈ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦੀ ਕਰਾਈ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਗਵਾਈਆਂ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦੇ और मैं अपनी बेगम को जाके पूछा उन्होंने कहा गोदाम भी सारा साफ करके बेचता उन्हें सिर्फ बात सवाल कली कराई उन्हें ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਗੋਦਾਮ ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਈਜਾਨ ਸਵਾਏ ਮਰੇ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ 1 करोड़ 13000 रुपया कर दे वरना मैं तेन प्रोग्राम तो बाद इथों छटल जा नहीं जाएगा बंद कर देगा तेन ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ यार इस तरह ना ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ 5 ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ 5 लाख आ गया ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ 75 रह गया 75 लाख ते 13000 13000 ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮਾਫ ਕਹੋ ਮਾਫ ਕਰਤਾ माफ किया ਪੰਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈਜਾਨ देता ਪੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 50 50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਜਾਨ 15 15000 ਭਾਈਜਾਨ 15 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ हकीम साहब आपका नान ये हकीम। ओहो नान हकीम साहब आपका ये मसला तो हल हो गया। हाँ। अब मुझे ये बताएं कि आपने अमेरिका में कैसी, मतलब कुछ औरतों से भी मुलाकात हुई, कैसी होती हैं वहां की औरतें? करना उसे है ही औरतां ने अच्छा और हुकूमत भावे मर्दा दी है हाँ। लेकिन चलदी औरतें भी है अच्छा रात नू चंगे भले मियां बीवी हंसते खेड़ते सौदे सुबह खावन दा सामान बाहर पिया हुंदा बूए तो ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ
वजह जो तू जाएगा ना, जो तेरी बुढ़ी तेरा सामान बाहर छोड़ेगी तेन पता लग जाएगा। कोई वजह नहीं हुई लड़ाई, बस मेरी ये कहनी है ऐसे ले नज़ीर टिड्डा मैनू अच्छा नहीं लग रहा, पुलिस ਨੂੰ फोन कर देना पकड़ के ले जाओ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। थोड़ियां तो मैंने तारियां सन जी भाईजान ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। अच्छा छोड़े हकीम साहब, वहां की औरत तो आपने देख ली। मैं आज आपको यहां पे एक ऐसी लड़की से मिलवाऊंगा जो बड़ी बहादुर है, लेकिन अभी सस्पेंस है। पाकिस्तान में भी अब ऐसी लड़कियां, ऐसी खवातीन हैं जो जमाने के आगे खड़ी होती हैं अपने मौकफ के साथ, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। और आज जिनसे आपकी मुलाकात हो रही है, बड़े लोग उनको बड़े प्यार से सुनते हैं, देखते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं नबीहा अली खान से। जी नबीहा, वेलकम हमारे इस शो में। आपकी बहादुरी के बहुत से किस्से हम सुन रहे हैं। क्यों जी हकीम साहब, अमेरिका में भी इनकी बातें हो रही थी कहीं? मैं कहना सारा अमरीका कह रहा है दबंग लेडी आया अमरीका भेजो। अच्छा भाईजान ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਲੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਈਏ। ओए बड़ी मशहूरी है जी, बड़ी मशहूरी, पूरी दुनिया डर रही है जी। ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਬੀਹਾ ड्रोन। भाई बहुत अच्छी शख्सियत है, मेरा तो दिल करता है तुसी मेरे घर आओ, मेरी बुढ़ी करेले आलू बहुत अच्छे पकाउंदी। नहीं, मैं इनके घर करेले गोश्त खाने जाऊंगी, मुझे दफना दे, मैं क्या करूंगी। डरने की जरूरत नहीं है, मौत का एक दिन मुय्यन। मुय्यन। नींद क्यों रात भर नहीं नहीं यार, वाह वाह। वाह वाह, काला आजकल क्यों नहीं आता। वाह जी। भाईजान उन्होंने किसी और हकीम नाल ब्याह कर लिया। अच्छा जी, भैया मुझे ये बताएं कि 2-3 बातें पब्लिक भी सुनना चाहती है, मतलब वो अपनी आंखों से देखना चाहती है जी, कि एक मासूम लड़की जो लोगों को बड़े अच्छे और अच्छी बातें बताती है, जी बातें ही होती है ना जी बिल्कुल, तो उससे आपका एक फैन फॉलोइंग हो गया, मतलब बहुत से लोग आपके फैन हो गए और वो आपको सुनते हैं। औरतें स्पेशली बहुत सुनती हैं। आओ जी, हकीम साहब। कई कारे इस बच्ची की वजह करके बस गए है, बच गए है, एडी अच्छी गल्लां सुनाउंदी। Yes। मैनू ते दिल करदा मैं कहां नानी अम्मा। एडी अच्छी गल्लां सुना रही है। मैं कहना भाईजान इन्होंने अपनी गल्लां नाल इन्नी घर वसाए, इन्नी घर वसाए, तो भाईजान अपना घर भी वसा लेना। और तो ये आपको खुशखबरी भी मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन अभी ठहर जाए। एक सवाल सिर्फ जी सवाल करें। सारियां दे घर बस गया, ਤੁਹਾਡਾ घर क्यों उजड़ गया? भाईजान ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ नबीहा ड्रोन जी। अच्छा बिहार ड्रोन। अच्छा, ये सब कुछ हुआ जी तो इत्तेफाक से सैलाब आ गया। जी, सैलाब ने लोगों को, आप जिस एरिया में रहती थी वहां पे सैलाब आ गया, जी जी, तो आपने अगर बात कर दी हाँ जी, कि ये हुआ है, तो लोगों को गुस्सा किस बात का आया? मतलब आपने कोई झूठ बोला था? सर बात उन्हीं के पीछे होती है जो कुछ होते हैं, आम बंदे की तो बात भी नहीं होती। कोई खास हो तो उसी की गन उछाला जाता है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इज्जतदार की इज्जत उछाली जाती है, बेइज्जत आदमी की तो अपनी कोई इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत कौन उछालेगा? हाय हाय। और अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपकी टॉप 10 पाकिस्तान की अहम शख्सियात जिनको लोग सर्च करते हैं पूरी दुनिया से, उनमें 2 ही खवातीन हैं, एक मैं और एक मारिया बी। इसके अलावा और आपके पाकिस्तान की कोई ऐसी खातून नहीं जिसको लोगों ने सुना हो या लोग उनको जो है वो फॉलो करते हो। देखिए यूं तो डांस करने वालों को भी, गलत काम करने वालों को भी, और भी बहुत सारे काम करने वालों को लोग के फॉलोवर्स हैं, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, लेकिन मैं तो टिप्स पे गिन भी नहीं सकती कि मेरे मिलियंस में हैं, बिलियंस में हैं, ट्रिलियंस में हैं। ये मेरे पर मेरे रब का बहुत बड़ा करम है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दुनिया भर में मुझे जो है यकदम शोहरत मिलेगी, लेकिन ये यकदम शोहरत नहीं है। मैं 10-11 साल की मेहनत के बाद आज
नबीहा अली खान, मेरी पल पल की दिन रात की मेहनत है। लोग मुझे कहते थे पागल है, एदा दिमाग खराब है। हाँ, जो बंदा जुनून से अपने काम और अपनी लगन में मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो पागल होता है। पागलपन ना हो तो आगे बढ़ ही नहीं जा सकते। आप नहीं आगे बढ़ सकते। आप में पागलपन नहीं तो आप ना जीत सकते हैं, ना बहादुर बन सकते हैं, और ना आपके अंदर पागलपन हो तो आप किसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं, और ना ही आप अपनी मोहब्बत तक पहुंच सकते हैं। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ काम 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 और नाकाम। भाईजान साहबा तुमने गल दसा, ਤੁਹਾਡੇ बड़े फॉलोअर हैं। हाँ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਭਾਈजान ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ। ਨਾ ਨਕੀਮ ਸਹੀ ਭਾਈजान ਨੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਤੰਦੂਰ ਬੰਦੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ। ਜੀ ਭਾਈजान ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। अच्छा, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈजान ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ऐसे भी बड़ी फ्रेंडशिप आ गई। ਇਹਦੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਮਈਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਸ਼ਰਬਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਣੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। मैं तो सुन के सुन हो रहा है। आपने हकीम बिठाए हुए यहाँ पे, इनको देख के मुझे एक शेर याद आ गया। वो कौन सा जी? देखी जो नब्ज मेरी कुछ लम्हा सोचकर, देखी जो नब्ज मेरी कुछ लम्हा सोचकर, कागज लिया और इश्क का बीमार लिख दिया। कुर्बान क्यों न जाऊं ऐसे हकीम पर, कुर्बान क्यों न जाऊं ऐसे हकीम पर, नुस्खे में जिसने शरबते दीदार लिख दिया। मुकाबले के शेर आ गया। मुकाबले तो छितर खाओगे तुम। देखा था उसको प्यार की नजरों से एक बार, वाह। देखा था उसको प्यार की नजरों से एक बार, फिर यूं हुआ कि शहर में हंगामा हो गया। आया था एक शख्स मेरे दर्द बांटने, फिर यूं हुआ कि अपने भी दुख मुझको दे गए। वाह 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 वाह, ये मैं भी कहूंगा जी। क्या दे? मत सता हमें हम सताए हुए, मत सता हमें हम सताए हुए हैं, अकेले ही गम उठाए हुए हैं, खिलौना समझ कर ना खेलो हमसे, हम भी इसी खुदा के बनाए हुए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ਤੇ ਭਾਈजान ਨਸੀਬੀ ਤੇ ਖੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। सुटो सुटो भाईजान ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਚ ਵੱਜੇਗਾ, ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, सुनाना है भाईजान। सुनाओ जी भाईजान, हम गए वो आए। अच्छा भाईजान हम गए वो आए, बस टापला शेर। भाईजान हम गए वो आए वो आए। भाईजान ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ? ਦੱਸੋ ਭਾਈजान। 3 पत्थर अनार आंदे। वाह भाईजान, नबी तानू बहुत पसंद आएगा है, क्योंकि तुसी एक लिटरेरी औरत जे। 3 पत्थर अनारां दे, 2 विच होर पा लो, 5 पत्थर अनारां। ਲੋ ਭਾਈजान ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ। सुनाओ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਭਾਈजान? सुनाओ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਈजान ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੇਰ ਮਾਰਿਆ। हाय चलदी बस मेरे मारिया। ਭਾਈजान खलोती नु मारदा ना, तेनु मार मार ਇਹੀ ਗੱਲ मार देगा। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈजान ਇਸ ਲਈ ਚਲਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ। ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ बेर मारिया। ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ। फिर पक्का चलदा हवा देंदा। हाँ जी, हाँ देखो जी, पक्का चलदा हवा देंदा। ਦੇਂਦਾ ਜੀ ਦੇਂਦਾ ਭਾਈजान। बंद कर दे तो नहीं देंदा। ਵਾਹ ਭਾਈजान। बस चुप। एडी अच्छी आवाज, एडा मजा आ रहा थी कुछ अपने शेर सुना के। सुनो सुनो, रुको रुको रुको। वो दुश्मन का पता चला जिसने इस सारे सिस्टम को खराब किया। सर मैं 7 साल से एक सोसाइटी में रह रही हूँ और मुझे उस सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक से सैलाब आता है तो मुझे ये पता चलता है कि मेरा सारा सामान, चीजें घर में पड़ी हैं। ऑटोमेटिक हर बंदा फिक्रमंद होता है, आपकी जगह कोई और भी जो लोग होंगे। एक बंदा सड़क पे खड़ा है और उसको ये खबर मिलती है कि पीछे सारा पानी भर चुका है, घर जो है वो डूब रहे और ये मामला जो है वो सारा हो गया। तो मैंने सिर्फ वहां वीडियो बनाई, वो वीडियो लोगों ने अपने मुफाद की खातिर इस्तेमाल की, क्योंकि आपको पता है कि एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जिनकी वो सोसाइटी है
اور ان کے اور بھی جگہ پر جو ہے وہ دشمن بھی بیٹھے تھے, سارا کچھ تھا. اب میری ان کے ساتھ ذاتی کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ میں تو ظاہر ہے اس سوسائٹی کو شروع سے پسند کرتی تھی اور میں وہاں رہ رہی تھی 7 سال سے. اب میں کرائے پہ رہ رہی تھی یا میں اپنے مکان میں رہ رہی تھی, میرے اپنے خاندان کے وہاں 4-5 مکان موجود ہے, اور اگر اس طرح میرے جاننے والوں کے دیکھ لیں تو اسی سوسائٹی میں 12 سے 15 مکان جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. مطلب میری اپنے خاندان کے, میری تایا, چچے, کزنز وغیرہ جو ہے وہ وہاں سوسائٹی میں رہتے ہیں, ان کے اپنے گھر ہیں وہاں پہ, وہ کرائے پہ نہیں رہتے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ الحمدللہ میرے والد صاحب کے نام پر 2 مکان, ایک کراچی میں, ایک اسلام آباد میں موجود ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ کرائے کے مکان میں رہتی ہوں تو میرا مکان نہیں ہے, کہ میں مطلب اپنی باتیں جو ہے وہ لوگوں کو بتائی نہیں جاتی. لیکن یہاں پر جو ہے وہ بھی میں ₹1,00,000 کرایہ دے رہی تھی, کوئی میں 20,000 25,000 پہ نہیں رہ رہی تھی. جو اتنا تماشا بنایا گیا کہ جس کا اپنا گھر نہیں ہے یہ کرائے کے گھر پہ رہ رہی ہے, کرائے کے گھر پہ رہنے والا انسان نہیں ہے, وہ کرایہ نہیں دے رہا, وہ تو سب سے زیادہ امیر ہے. وہ تو آپ زیادہ پیسہ جو ہے وہ کما کے جو ہے وہ کرایہ بھی دے رہا ہے, بل بھی دے رہا ہے, وہ اپنی لائبلٹیز بھی پوری کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. اگر میں نے بھی کرپشن کی ہوتی یا میں نے بھی جو ہے وہ شارٹ کٹ لیا ہوتا تو میں نے تو محلات بنا لیے ہوتے اب تک. جتنی میں مشہور ہوں, میرے پاس تو لینڈ کروزر ہونی چاہیے تھی. دنیا بھر میں مشہور ترین شخصیات کی لسٹ میں اگر نبیہہ علی خان کا نام ہے تو آپ کیسے نکال دیں گے؟ آپ لوگوں نے تو مجھے گرانے کی بڑی کوششیں کی. میں سب کے چہرے مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں جنہوں نے مجھے گرانے کی کوشش کی, اور باقاعدہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں, مجھے تنگ کیا گیا. جتنا لوگ مجھے تنگ کرتے گئے اتنا میرے رب کی طاقت میرے ساتھ جڑتی گئی اور اتنا میں مضبوط ہوتی گئی. بہادری کے لیے سر ٹوٹنا ضروری ہے. جہاں آپ ٹوٹتے ہیں نا وہاں رب آپ کو سنبھال لیتا ہے. سنبھال لیا, بہادر ہو گئے. بہادری کوئی پیدائشی نہیں ہے, پیدائشی خاندانی ہمارا اثر و رسوخ. میرے دادا پردادا کا ایک نام تھا, مسلم لیگ بنانے میں ان کا ایک اہم کردار تھا. وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے پردادا میرے جو تھے وہ کلاس فیلو تھے. تو ہم جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی فیملی سے میرا تعلق نہیں ہے الحمدللہ. یہ اور بات ہے کہ اس وقت کے جو نواب تھے وہ آج اس ملک میں ذلیل ہی ہو رہے ہیں. ہاں میں دیکھ رہا ہوں اسی گل ٹھیک کر رہے ہو حکیم بھائی جان دی گل دا برا. میرے دشمن انہاں دے دادا پردادا دا بھی بڑا ناس. ہاں کی ناس سی دسو. نبیہ تم نے اتنی اچھی باتیں کی, میں سن کر نہیں رہا کہیں کا. واہ واہ واہ. ہاں نبیہ, جس طرح سے تم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہو, مطلب لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں. سر آج کے دور میں بڑا مشکل ہے, یہ بات دل سے نکلی ہو تو ہی لوگوں کے اندر اثر کرتی ہے. جی تو اتنی طاقت کہاں سے یہ سب کچھ ملتا ہے آپ کو جو لوگوں کو آپ بتاتی ہیں؟ راز بتا دوں؟ راز بتائیں. ہر اس لڑکی کو راز بتا دیتی ہوں. بلکہ ٹھہر جائیں, راز ابھی نہیں بتانا. ٹھیک ہے, یہ ہم ابھی سسپینس چھوڑ کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب میں آؤں گا تو آپ سے راز پوچھوں گا, بلکہ آپ کے تھوڑے سے جو انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو ساتھی کیوں نہیں مل رہا, ہاں تو ہم کچھ آپ کو کچھ اور لوگوں سے ملائیں گے. اچھا, ٹھیک ہے, کوئی سرپرائز ہے؟ انتظار کریں, آپ کے لیے بھی سرپرائز اور ناظرین کے لیے بھی سرپرائز. اور جناب بڑے سسپینس چھوڑ کے ہم گئے تھے, اور اب جواب دیجئے کہ یہ سب کچھ کہاں سے ملتا ہے, راز کی بات. راز یہ ہے خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ کہ دیکھیں آپ کی بات میں دم تب آتا ہے جب آپ کو رب نے ایسی مشکلات سے گزارا ہو جہاں پہ جینا ناممکن ہو, زندگی ختم ہو گئی ہو. میں نے ایسی زندگی کے پل اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جہاں میری زندگی ختم ہو گئی تھی. میرے سامنے صرف 2 راستے تھے, یا تو میں مر جاؤں یا پھر میں زندگی کی طرف آ جاؤں. ہائے ہائے ہائے. اور میرے پاس ایسے راستے زندگی میں 2 دفعہ آئے جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا. جب میں نے اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی شکلیں دیکھی تو مجھے لگا کہ اگر میں نہ جی تو ان کا کیا ہوگا, اور اگر میں مر گئی تو رب کے آگے جا کے جواب کیا دوں گی کہ مشکلات سے ہار گئی تھی, گھبرا گئی تھی. واہ واہ, اس کی بات کو تالیاں. 2 دفعہ اس راستے سے جب میں گزری تو تیسری دفعہ میرے رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا اب میں بے بس ہوں. میں نے پھر قرآن کی اس آیت کو سمجھا کہ اللہ کہتا ہے جہاں تم بے بس ہو جاتے ہو وہاں سے میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں, سنبھال لیتا ہوں. آج جب نبیہہ علی خان کا پوری دنیا میں ایک نام ہے تب بھی نبیہہ علی خان کوہ نور نیوز کے ساتھ ہے. تو جس نے آپ کو اس برے وقت میں آپ کا ساتھی بنا, آج میں آپ کی اس سے ملاقات کروانے لگا ہوں. اچھا. پتہ ہے آپ کو؟ جی ناظرین, وہ بہادر شخص
जिसने एक बेसहारा लड़की को पूरी तरह से शेल्टर दिया। मैं आज स्पेशली मैंने उसको बुलाया है ताकि आपको भी पता चले कि नबीहा इतनी बहादुर क्यों है। पेशे के एतबार से जर्नलिस्ट है और जनाब पाकिस्तान यंग मीडिया जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट है जनाब हारिस खोकर साहब। हारिस साहब तशरीफ लाइए। आमतौर पे लोग इतने बहादुर नहीं होते और तुम्हारी उम्र के लड़के तो इतने बहादुर नहीं होते, और तुमने जिस बहादुरी के साथ नबीहा का साथ दिया, क्यों दिया, क्या लगा आपको, किस वजह से? बट साहब ये बहादुरी जो है ये उस शख्स में आप देखेंगे जिसने कभी ज्यादती नहीं की होगी, जिसने कभी 2 नंबरी नहीं की होगी। यानी कि नबीहा को कैसे मिले, किस तरह से मुलाकात? मैं एक बात सॉरी करना चाहता हूं जी। मेरे भाई के साथ बैठे हैं, ये भी प्रेसिडेंट हैं। जी जी। अननोन एसोसिएशन। भाईजान ने वड्डी एसोसिएशन है ना। भाई दुनिया जो है ना दी कोई है। जी भाईजान मैं भी यही चाहना भाईजान। अच्छा जी, कैसे मुलाकात हुई? पहले इवेंट में मेरे और बड़े से बड़े नाम, लाहौर बार के सदर, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार के सदर, आपकी डॉक्टर एसोसिएशन की लीडरशिप, आपके सारे जर्नलिस्ट। डॉक्टर नबीहा कहीं से ढूंढ के इस इवेंट में आई थी। अब वो आपने इनसे पूछना कि उन्होंने कैसे इवेंट को ट्रेस किया और यहां तक पहुंची। जी नबीहा। मैं एक एंकर थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे पास जो है वो इनविटेशंस आते रहते थे। देखिए बुरे वक्त में जो साथ खड़ा होता है वो बड़ा अजीम आदमी। एग्जैक्टली। इनविटेशन आया मेरे पास और उस इनविटेशन में जो है वो लिखा हुआ था कैसे यंग मीडिया एसोसिएशन बन रही है, उसका इवेंट हो रहा है। अच्छा मैं चली गई, मैंने देखा वहां पे सारे यंगस्टर्स थे। वो हम लव स्टोरी सुनना चाहते हैं, हलफ ले रहे थे। कैसे आपको ये अच्छे लगे? हाँ मैं बताती हूँ कैसे इनको आप अच्छी लगी। मेरे ऐसी मूवमेंट बताएं। मेरे दिल की गल की थी तो लव स्टोरी 2 मिनट खत्म हो जाएगी। कैसे? एक केले ने छिलका पिल के डिग्गा था, सिर पाटा, एक औरत ने कहा मैं तेन की है, लव हो गया। अच्छा पहली बार मैं गई हूँ तो मैंने इनको देखा तो ये पसीने पसीन शर्ट हुई हुई है, सब लोगों के लिए खाने और चीजें। उसको पता ही नहीं मैं प्रेसिडेंट हूँ या मैं कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूँ तो मैं कोई बैठ जाऊं आराम से, नहीं, खुद ही काम कर रहा है। हर किसी के पास जा जाके पूछ रहे हैं कि भाई आपको खाना चाहिए, आपने खाना खा लिया। मेरे पास भी आए कि आपने खाना खा लिया, मैंने कहा जी मैंने भी खा लिया है। तो कहने लगे चलें फिर डॉक्टर साहबा, हमने तस्वीरें वगैरह बनवाई। उसके बाद मैं वहां से आ गई। फिर मुझे अगले दिन जो है वो 1-2 दिन बाद इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि आपने ज्वाइन करनी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा जी बिल्कुल क्यों नहीं। तो इन्होंने कहा चलें, हमने तो सारे ओहदे बांट दिए, अब तो हमारे पास कोई ओहदा ही नहीं है, तो आपको कौन सा ओहदा दें? इन्होंने कहा जी पर्सनल सेक्रेटरी का ओहदा है वो ले लें। मैं कहा बहुत शुक्रिया आपका, मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी की पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बन सकती। मैंने कहा आप प्रेसिडेंट हैं, मुझे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे। फिर इन्होंने गुस्सा किया, इन्होंने आपको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी आता है जनरल सेक्रेटरी के साथ, ये चाहती थी प्रेसिडेंट के साथ आना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो फिर इधर तो पर्सनल यही होगा। देखे ना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मैंने कहा जी मैं तो फिर लेवल पे काम करूंगी ना, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ। अच्छा उस वक्त तक जिन लोगों ने हलफ उठाया था वो कोई 10-15 लोग थे जब ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन की। जब मैंने ये ज्वाइन की तो जाहिर है हमारे भी जानने वाले सब लोग उसमें एंटर होते गए और अब माशाल्लाह हमारे लाहौर से ही जो है वो तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग जो है वो इसमें शामिल हैं। सर अब तो आप पे अल्लाह मेहरबान है, जिधर कदम रखेंगी वहां पे। क्यों जी? हाँ जी भाईजान, जिथे पैर उत्थे ही खैर। और इन्हों का सुन लो भाईजान, इन्हों का जिथे ही पैर उत्थे ही सैर। जिथे पैर उत्थे ही पैर। तो नाज़रीन आपने देखा कि आज हमने आपको सरप्राइज दिया। नबीहा जो लाखों दिलों की धड़कन है, उनके दिल की धड़कन कौन है आपको हमने मिलवा दिया। क्या बात भाई। तो कब शादी कर रहे हैं, कब क्या मतलब हम कोई खाना शाना खाएंगे, मिठाइयां खाएंगे, बताएं ना जरा। तू शादियां ते खाने वैसे नहीं जाना मुझे। भाईजान साडे जेड़े बाबू जी ना, इन्हां नूं ते रोटी खाण दा इन्ना शौक है भाईजान। टेंट लगे ते अंदर वड़ गए मुबारका देन भाईजान। अच्छा उन्होंने मार कुट के बाहर कढ़िया भाईजान। उन्हां दा चाचा मरिया सी, मुबारका दे गया।
अब इनसे पूछ लेना कि इनको मैं अच्छी लगी कि नहीं लगी। हाँ, ये अच्छा हाँ जी। इनकी जो आदत मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि 6 साल में मैंने इनमें एक चीज देखी कि ये मेरे दुश्मन को अपना दुश्मन समझती थी। कोई 2 लाइनों में हारिस के बारे में कुछ बोल के दिखाए, अपनी फीलिंग्स। इनके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। हाय हाय मेरी जिंदगी है तू। वाह 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 वाह। भाईजान एक बारी फिर भाईजान हमने सुनाओ। ओए नजर ना लाइए, नजर ना लाइए, दर दफा हो जा। भाईजान पूछ रहे हैं वो भाईजान। ना भैया तुम गाओ ना, तनु नब्बे गवा के जग सारा गाओ ना। ओए भाईजान सालन ले डोंगे जग दी गल। अच्छा जी हारिस आप बताएं। अच्छा मैं ये अब 2 लाइनों में आपने इनकी तारीफ करनी। अगर औरत आपकी पसंदीदा औरत जो है ना वो तब बनती है कि वो आप उसका करैक्टर पे इंसान मरता है। बाकी मेरे खानदान में या आउट ऑफ फैमिली बहुत चीजें मुझे मिल रही थी और बहुत सी ऑप्शंस थी, लेकिन अगर मैं फिदा हुआ हूं किसी चीज पे तो वो इनकी सच्चाई और करैक्टर पे। अच्छा कभी मतलब एक हर दफा लोगों को ये मतलब एजुकेट कर रही होती है, जब अकेले होते हैं तो कोई बीच में कोई कॉमेडी, कोई रोमांस, कोई इस तरह की बातें होती हैं कि उसमें भी आइए आपको समझा रही होती, मर्द ऐसे नहीं होते। गाने भी सुनाती हैं। अरे बन गया जी, गाना आ गया। और नकल भी उतारती हैं, मिमिक्री भी करती हैं। अरे और इनकी गली में एक कूड़े वाला आता है वो भी बन के दिखाती है। अरे कूड़े वाले का तो इनकी गली में कूड़े वाला आता है, हमने बुला रखा है। जी भाईजान कूड़े लाया तो कूड़ा इकट्ठा किया ना हो जाएगा ना। हाँ जी, किस तरह बुलाता है कूड़े वाला? वो सुबह सुबह मतलब सोए हो ना तो उसने बेलें बुझा बुझा के टन 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 टन। अच्छा जब मैंने बाहर में कौन है, बाजी कूड़े वाला है, बाजी कूड़े वाला। यार भाई कौन, क्या मसला क्या है तुम्हें? और बाजी तुझे कूड़ा नहीं रखते बाहर, और मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने वाले जड़े आंटी ने कूड़ा बाहर रख देने, तुसी रख दे ही नहीं। जबरदस्त नबीहा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। आप लोगों से बातें करके बड़ा मजा आया। आज आपसे जो गुफ्तगू हुई वो यकीनन हमारे नाजरीन को भी बहुत सी ताकत दे। जी जी भाईजान जी है, ऐसा ही है ना? जी भाईजान तानों पे बहुत मजा आया। हाँ वैसे तो अल्लाह करे आप जल्दी से एक हो जाएं, हमारी दुआ है, और खुशगवार जिंदगी गुजारें। हारिस बहुत अच्छे इंसान है जी, गुफ्तगू करके पता चल जाता है इंसान का। ही इज अ नाइस फेलो, और आप तो हैं ही अच्छी। कोई मैसेज देना चाहें अवाम के लिए? अवाम के लिए, नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि आप बहादुर रहें, दलेर रहें, मोटिवेटेड रहें, और आप अगर चाहते हैं कि आप लड़ जाएं किसी चीज से भी, तो आप अपनी जवानी जो है वो उसमें उसको जाया ना करें। आप स्पोर्ट्समैन जरूर रहें, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो कभी जिंदगी में आपको स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं होगा और आप हर मुश्किल से लड़ जाएंगे। वाह एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नबिया आखिर में आपका मैसेज? मेरा मैसेज हर उस बीवी के लिए है जिसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता। हाय हाय। औरत के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अपनी मनवा ले या अपने शौहर की मान ले। वाह। मैंने अपने आप को, अपनी अना को खत्म करके बड़ी बातों को तस्लीम किया है, अपने आने वाली जिंदगी के लिए भी और अपनी गुजरी हुई जिंदगी में भी। तो अगर मैं कर सकती हूं तो दुनिया की हर औरत जो है वो अपनी बात तभी मनवा सकती है जब वो पहले अपने शौहर की बात मानेगी। जिद ना लगाएं, अना ना लगाएं। मियां बीवी के रिश्ते में ना अना होती है ना जिद होती है, सिर्फ जी हजूरी होती है। यस, तालियां तालियां तालियां। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और नाजरीन, वक्त का मैंने जैसे कहा है पता ही नहीं चला। हमें इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।